Hello guys, welcome to my YouTube channel. So this is large language models end-to-end project Paraphrase Generator app. तो इस प्रोजेक्ट में हम एक end-to-end ऐप बनाने वाले हैं जिसके लिए हम Google Pegasus Transformer large language model का इस्तेमाल करेंगे. So before proceeding and checking the output of this app, we need to understand what is paraphrase and how to generate paraphrase using natural language processing, especially large language model. और बिफोर दैट लेट मी शो यू द आउटपुट. तो मैं क्या करता हूँ, एक नए सिरे से यहाँ पे एक सेंटेंस लेता हूँ. जस्ट लेट मी जूम इन अ बिट. दिस इज माय इंटरफेस ऑफ माय ऐप. यहाँ पे मैंने एक्चुअली फ्लास्क यूज किया है. तो एक सेंटेंस मैंने लिया है, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट. अब इस सेंटेंस को मैं डिफरेंट तरीकों से कह सकता हूँ. मीनिंग एंड आइडिया विल बी सेम. सेंटेंस का जो मीनिंग एंड आइडिया होगा वो सेम होगा, बट द स्ट्रक्चर एंड वर्ड्स कैन बी डिफरेंट. दिस इज नोन एज paraphrase. So अभी के लिए मैं चाहता हूँ to generate only 5 sentences and click on this paraphrase button. Then a little bit you will see the output. So this is the output. Let me zoom in. Original is the cat is sleeping on the mat, जो कि हमने टाइप किया, and 5 generated paraphrases are the cat is sleeping, the cat is asleep, the cat is sleeping, there is a cat on a mat, the cat is laying down. Let me try another one. This time let's say we live in we live on earth. अब देखते हैं कि I want to generate 10 paraphrases for these sentences. Idea and meaning will be same, but the structure and words can be different. Okay, so let me click on this paraphrase button. Let's see what it generates. So it generated that. Just let me show you. Original is we live on earth, we live in the world. देखिए यहाँ पे अर्थ को रिप्लेस किया वर्ड के साथ. एक और जनरेटेड है, we live in the real world, we live on the planet. यहाँ पे planet को चेंज किया. We live in this world, we are on the planet, we live in the present, we live on this planet, we are living on the planet, we live in present day. So this app is working quite amazing, and once again for this entire project we will be using Google Pegasus large language model. So before proceeding and implementing the code and creating this amazing app, we need to understand what is paraphrase and how to work on it in natural language processing. So let's do that. तो सबसे पहले देखते हैं कि paraphrase क्या होता है. Then we will see paraphrase meaning. So in English language and English grammar, paraphrase refers to express the same idea or message using different words or phrases while preserving the original meaning. यानी अगर आपके पास एक सेंटेंस है जिसको आप पैराफ्रेज भी कहते हो, अगर आप उसको एक और तरीके से लिखना चाहते हो या एक और तरीके से बोलना चाहते हो तो उसको कहते हैं पैराफ्रेज. लेकिन कीप इन माइंड आइडिया एंड मीनिंग मस्ट बी सेम. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. I have original sentence, the cat is sleeping on the mat. बिल्ली रजाई पे सो रही है. मैट इज नथिंग बट रजाई. ओके, अगर मैंने इसके लिए फ्रेज माइंड करना होगा यूजिंग मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आई मीन लार्ज लैंग्वेज मॉडल. ओके, I can generate different kind of structure of this same sentence. The idea and meaning will be same. जैसे कि the kitty is snoozing on the carpet. अब मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल सेंटेंस के अंदर जो नाउन्स है, वर्ब्स है, मेन वर्ड्स हैं, वो जनरेटेड पैराफ्रेज के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं. लाइक इट can be replaced with kitty because the same meaning, same idea. Snoozing and sleeping are the same, carpet and mat are the same. The same thing goes with another sentence like the cat is lying down on the mat. On the mat, the cat is napping. Napping is similar to sleeping. The feline is asleep on the rug. Rug is similar to mat. Feline is similar to cat. Resting on the mat is the cat. So overall, paraphrase is nothing but writing the same sentence with the same idea, same meaning in different words or different structure. This is all about paraphrase. Now let's start the project. So I am using Google Colab for this project. Okay. अब सबसे पहले यहाँ पे आपने इंस्टॉल करना है सेंटेंस स्प्लिटर, और उसके बाद आपने ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, एंड देन यू हैव टू इंस्टॉल सेंटेंस. बट बिफोर दैट व्हाट यू हैव टू डू, गो टू योर एडिट
and there click on notebook settings and select TPU. ओके, यहाँ पे TPU यानी GPU सेलेक्ट करने के बाद इसको सेव कर दो, ठीक है, मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। So जब आप इस सेल को रन करेंगे, by the way I am going to share this entire code with you. Okay, so just let me run this cell and after that you will see all these libraries will be installed. के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ इस मॉडल के बारे में जो अभी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो मॉडल है गूगल रिसर्चर वालों ने प्रोवाइड किया है, ये आपको हगिंग फेस ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी में मिल जाएगा। वी विल डायरेक्टली डाउनलोडेड फ्रॉम हगिंग फेस दिस पेगासस मॉडल। ये एक सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल है जिससे आप किसी भी टाइप का टेक्स्ट कर सकते हो। सो स्पेशली ये यूज होता है फ्रेज जनरेशन के लिए। ओके, सो ये बनाया है गूगल रिसर्च वालों ने। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बट आई विल शो यू हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डाउनलोड दिस मॉडल। डेफिनेटली ये तीनों लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल करनी है गूगल कोलैब में। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले PyTorch इंपोर्ट करूंगा, उसके लिए मुझे लिखना होगा टॉर्च, ठीक है। और उसके बाद मैं ट्रांसफार्मर लाइब्रेरीज के अंदर जाके यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ दो चीजें, एक क्लास जिसके थ्रू मैं इस पेगासस रेफरेंस मॉडल को डाउनलोड करूंगा यानी यूज करूंगा, और उसका टोकनाइजर। सो लेट मी डू दैट क्विकली। सो हमने यहाँ पे पेगासस फॉर कंडीशन जनरेशन क्लास इंपोर्ट किया है एंड पेगासस टोकनाइजर यहाँ पे इंपोर्ट किया है। With the help of Pegasus tokenizer, we will download the tokenizer of this model, and with the help of this class, Pegasus for condition generation, we will be downloading actually the model that has been generated by Google Researcher. Sorry for that. So मैं एक बार फिर से इसको रन करता हूँ. Just let me run it. Now I'll download that. For downloading, we will use this code. Okay. So मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, just मैं इसको थोड़ा सा तरतीब देता हूँ. I had used this thing, okay, this class. With the help of this class, I am going to download this model from Hugging Face library or website, okay, using Transformer library. ये जो कोड है, ये कोड मैंने Hugging Face से उठाया है, आप भी यूज कर सकते हो, but I'll share this notebook with you. इसके लिए हमने from pre-train function यूज किया है. The same thing goes with the tokenizer, okay. So model will be stored within model and tokenizer will be stored with tokenizer. So let me run this and कुछ वक्त के बाद ये आपका यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा. We are using GPU, so it will not take much time. But if you are using CPU on your system, then definitely it will take some time. So our Pegasus model will be downloaded a little bit later. Then we will implement its tokenization. Okay. Now before that, let me show you that what is tokenization a little. So ये है वो playlist NLP transformer projects in which we are implementing all large language model end-to-end projects. Okay, so you need to watch this video. Multi-class versus multi-level dataset, tokenization and target encoding, NLP processing techniques. This video is very important for you. Please watch this video. But if you have watched all the previous video, then definitely आपको tokenization के बारे में काफी डिटेल तक आइडिया होगा. So tokenization we use to set our input data is per the structure of that large language model. Okay. So अभी के लिए मेरे पास just let me zoom in. ये मेरे पास एक input text है. The ultimate test of your knowledge is your capacity to convert to another. अब इसको मैं tokenize करूंगा. कैसे? मैंने import किया है यहाँ पे टोकनाइजर, यानी मैंने टोकनाइजर ऑलरेडी डाउनलोड किया है गूगल पेगासस मॉडल का. इसको मैं अपना टेक्स्ट दूंगा, आई एम इन दिस टेक्स्ट, बट मैं इसको एक लिस्ट में पास करूंगा. सो दिस विल बिकम अ लिस्ट. अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर है लाइक पैडिंग को मैं रखना चाहूंगा ट्रू. आई विल डिस्कस अ लिटिल अबाउट दिस ऑल पैरामीटर्स जो टोकनाइजर यूज करता है. उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रंकेशन भी ट्रू रखूंगा, आई नीड ट्रंकेशन एज वेल. और मैक्स लेंथ मैं दूंगा कि मेरे इस कॉर्पस का या मेरे इस टेक्स्ट का जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो इतना ही होगा. लेट्स से फॉर नाउ आई एम गोइंग 60 वर्ड्स. ओके, एंड रिटर्न आंसर आप यहाँ पे बताते हो, रिटर्न आंसर विल बी जी यानी PyTorch. ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इस टेक्स्ट को
उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जो अपना ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल, आई मीन दिस पेगासस मॉडल अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, ये हर मॉडल के साथ एक टोकनाइजेशन आता है। अब टोकनाइजेशन को आप पहले अपना इनपुट टेक्स्ट देते हो, और उसके बाद आप पैडिंग देते हो, उसके बाद ट्रंकेशन देते हो, उसके बाद आप मैक्स लेंथ देते हो। मैक्स लेंथ में आप बताते हो कि मेरे इस इंटायर डेटा सेट के अंदर जो एक सेंटेंस का मैक्सिमम लेंथ होगा वो इतना होगा, ताकि लेंथ का इशू यहाँ पे ना हो, कम और ज्यादा का। पैडिंग हम इसलिए देते हैं कि अगर एक सेंटेंस की लेंथ 100 है और एक दूसरा सेंटेंस है जिसमें 60 वर्ड्स है, तो 60 वर्ड्स एंड 100 वर्ड्स आर नॉट सिमिलर, आर नॉट इक्वल। हम जो 60 वर्ड्स है उनके साथ 40 जीरोस ऐड करते हैं, जीरो यानी 40 पैडिंग्स ऐड करते हैं, ताकि जो 60 हो वो इक्वल हो जाए 100 वाले सेंटेंस का, ताकि मॉडल्स में कंफ्यूज ना हो और यहाँ पे इक्वल हो। मैंने ये सारी चीजें बड़े डिटेल के साथ बताए हैं, बट यहाँ पे मैंने जस्ट जनरल ओवरव्यू देना था। रिटर्न टेंसर हम इसलिए देते हैं कि मैं ये इंटरनली ये मॉडल पाइटॉर्च लाइब्रेरी यूज करता है। अगर टेंसर फ्लो यूज करता और आप यहाँ पे टेंसर फ्लो यूज करते तो आप टीएफ देते। तो ये जो होगा इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, इसको मैं कहता हूँ बैच। ये मेरा अपना बैच होगा। अब मैं इस बैच पर मॉडल से जनरेट करूंगा। देखना अभी के लिए मैंने रियल इंप्लीमेंटेशन यूज नहीं किया है। आई जस्ट वांट टू शो यू द वर्किंग ऑफ दिस मॉडल, देन वी विल क्रिएट आवर ओन फंक्शन। सो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ आउटपुट, इट विल स्टोर द आउटपुट ऑफ दिस बैच, आई मीन दिस टेक्स्ट जो हमने टोकनाइज किया। उसके बाद मेरे पास मॉडल है जो मैंने डाउनलोड किया है, इससे मैं जनरेट करता हूँ। तो उसके लिए आप जनरेट फंक्शन, इसके अंदर एक फंक्शन आता है जनरेट, वो यूज करता हूँ। अब इस पेज के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो मैं यहाँ पे स्टैरिक यूज करूंगा, डबल स्टैरिक पाइथन में ये आपको प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे भी मुझे मैक्स लेंथ बताना होगा, सो मैक्स लेंथ विल बी 60, सेम लाइक माय टोकनाइजेशन। अब ये मॉडल दो चीजें आपसे लेता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ बीम्स, नंबर ऑफ रिटर्न सीक्वेंसेस एंड टेम्परेचर। अभी बताता हूं, बट पहले मैं यहाँ पे अगर दे दूं नंबर ऑफ बीम्स, ये पैरामीटर्स हैं जो पेगासस मॉडल इंटरनली यूज करता है। क्यों करता है मैं बताऊंगा। सो अभी के लिए मैं 5 देता हूं, ओके 5। और उसके बाद ये आपसे एक और पैरामीटर लेता है, नंबर ऑफ रिटर्न सीक्वेंसेस। सो रिटर्न सीक्वेंसेस को भी मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ। यानी नंबर ऑफ रिटर्न सीक्वेंसेस का मतलब ये है कि इस सेंटेंस के लिए आप कितने सेंटेंसेस जनरेट करना चाहते हो बाय दिस मॉडल। ओके, अगर आप 10 जनरेट करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 जनरेट किए हैं, सो दिस 5 सेंटेंसेस आर जनरेटर पैराफ्रेजेस आर कंसिडर्ड बाय दिस पैरामीटर। ओके, लास्ट डाइवर्सिटी के लिए ये मॉडल इंटरनल यूज करता है टेम्परेचर, जो डाइवर्सिटी को कंट्रोल करेगा इस मॉडल की रनिंग के दौरान। तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेम्परेचर। सो टेम्परेचर का स्पेलिंग कुछ इस तरह है, इसकी आप रेशियो देते हो, मैं 1.5 रखता हूँ। नाउ दिस 1.5 इज बिल्ट इन। आप जब हगिंग फेस लाइब्रेरी पे जाते हो और इस मॉडल के बारे में पढ़ते हो, तो वो रिकमेंड करते हैं दैट you must use 1.5 for temperature. Okay, के लिए मैं जस्ट इसको रन करता हूँ, we will see that what we are getting in the output. So यहाँ पे एरर है, are not used by the model temperature. I think spelling mistake. There is a spelling mistake. So let me make it at the end. I think there is a e. Okay, let me run it again. So ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, नाउ लेट मी शो यू दैट हाउ आवर आउटपुट लुक्स लाइक। अब चूंकि हमने टोकनाइज भी कर लिया अपने इस इनपुट को by using all this parameter of tokenization, and then we generate 5 phrases for these sentences जो कि इस आउटपुट के अंदर स्टोर है। नंबर ऑफ बीम्स एंड टेम्परेचर आर सम पैरामीटर जो ये मॉडल यूज करता है इंटरनली अपने परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए। एंड नंबर ऑफ रिटर्न सीक्वेंसेस आर यूज्ड टू सेट योर आउटपुट। आप 5 सेंटेंसेस चाहते हो आउटपुट में या 10 सेंटेंसेस, ठीक है। सो जस्ट लेट मी शो यू। अब मुझे इसको डिकोड करना होगा और ये आप टोकनाइजेशन की मदद से कर सकते हो। सो टोकनाइजर इसके अंदर एक फंक्शन आता है बैच डिकोडर, ठीक है। सो मैं बैच डिकोडर के अंदर अब पास करूंगा अपना आउटपुट जो मेरे मॉडल ने जनरेट किया है,
और एक चीज यहाँ पे मैं चाहूंगा, ये रिटर्न करता है स्पेशल टोकन्स, यानी किसी भी सेंटेंस के पहले और एंड में दो चीजें ऐड करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। मैंने बर्ड के वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ बताया था। आई डोंट वांट दैट, सो मैं उनको, सॉरी आई वांट दैट, तो मैं उनको भी ट्रू रखूंगा। और अब ये जो होगा, इसको मैं एक और वेरिएबल में स्टोर करता हूँ बाय द नेम ऑफ रिजल्ट्स। अब मैं इस रिजल्ट को प्रिंट करूंगा और देखते हैं कि होता है क्या। सो रिजल्ट्स, सो यू कैन सी वी हैव अ लिस्ट। अगर मैं जस्ट यहाँ पे रिजल्ट रखूँ, then you would see you have 5. The original sentence is, the ultimate test of your knowledge is your capacity to convey it to another. Let me check the recording, sometime it stops. Okay. And generated sequences for this input is, the test of your knowledge is your ability to convey it. यहाँ पे इसने structure and words को change किया, otherwise the meaning in idea is same. The ability to convey your knowledge is the ultimate test of your knowledge. The test of your knowledge is your ability to communicate it, your capacity. So yeah, definitely this model is working quite good. Now we will save this model. We have just downloaded this model. It's a pre-trained model. In this video, we are not going to fine-tune this model on our custom data. Next video में हम custom data use कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा कोड होगा. But इस वीडियो में I am going just to show you that how you can use a pre-trained model. अब ये मॉडल हमने डाउनलोड किया है, we need to save it. So model.save pre-trained and tokenizer.save pre-trained. We need both these two things because we will be using PyCharm definitely. So मैं इन दोनों को सेव करूंगा। यहाँ पे मैंने लोकेशन दिया है, लोकेशन आप किस तरह देते हो, you need to save this model to your ड्राइव। मैंने यहाँ पे ड्राइव इंपोर्ट किया है। अगर आपका इंपोर्ट नहीं है तो आप जस्ट इस वाले बटन पे क्लिक कर लेना, तो आपका ड्राइव इंपोर्ट हो जाएगा। इस ड्राइव को आपने एक्सटेंड करना है। नाउ जस्ट कॉपी द पाथ ऑफ दिस माई ड्राइव। ओके, यू माइट बी थिंकिंग व्हाई वी आर डूइंग दिस, वी कैन डायरेक्टली सेव इट राइट हियर, बट यहाँ पे ये मॉडल बहुत बड़ा है, तकरीबन 2 GB है, तो ड्राइव से फिर डाउनलोड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस सेल को रन करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू सेव दिस सेल, ओके, बिकॉज आई ऑलरेडी सेव्ड देम। तो ये आपका सेव हो जाएगा इस वाले लोकेशन पे। अब अगर मैं ड्राइव में जाऊं, विद इन ड्राइव यू विल हैव 2 थिंग्स, टोकनाइजर। इफ आई एक्सपेंड टोकनाइजर, इन टोकनाइजर यू हैव 2 थिंग्स, स्पेशल tokens.json, this model, and tokenizer config, and there is another that is model। इसके अंदर आपके पास config.json है, generate, you don't need to worry about these things, okay, you don't need, and we have also model, but अभी के लिए आपने ये करना है because these 2 things are very important for our production, जब हम इसके लिए ऐप बनाएंगे। So अभी के लिए just run this cell, जैसे भी ये कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। Now I am going to reload this save model because I want to use them right here before going to production। उसके लिए again आप यूज करते हो guesses for condition generation dot from pre-train। ये मैंने पाथ दे दिया जो मेरा ड्राइव का है फॉर मॉडल, एंड द सेम थिंग गोस फॉर टोकनाइजर। सो लेट मी रन दिस थिंग। ओके, ये रन करने के बाद नाउ वी विल क्रिएट अ रियल वर्ल्ड प्रेडिक्टिव सिस्टम। उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसको मैं नाम देता हूं प्रेडिक्ट। अब ये फंक्शन चीजें लेगा, जैसे कि इनपुट टेक्स्ट जो यूजर पास करेगा अपना कोई भी सेंटेंस, और यूजर की मर्जी है कि वो कितना सीक्वेंस चाहते हैं। आउटपुट में वो 5 सीक्वेंस चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ डिफॉल्ट पैरामीटर्स भी देंगे। सो नंबर ऑफ रिटर्न सीक्वेंसेस भी आप कह सकते हो। बाय डिफॉल्ट आई वांट 5, और नंबर ऑफ बीम्स ऑप्शनल है वैसे, बट हम दे भी सकते हैं बीम्स विल बी इक्वल टू 5। ये बाय डिफॉल्ट 5 है, बट डिपेंड करता है यूजर पे को वो चेंज करता है या नहीं। सो ये मेरा फंक्शन है। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, ठीक है, और कॉल करते वक्त मैं इसको यूजर का इनपुट पास करूंगा और जो जो चीजें इसको जरूरत है। सो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा नंबर ऑफ बीम्स जो कि 5 होगा, या फिर इसको 10 भी कर सकता हो, ये इसको ओवरराइड कर देगा यहाँ पे क्योंकि हमने डिफॉल्ट पैरामीटर लिया है। और नंबर ऑफ रिटर्न सीक्वेंसेस जो यूजर चाहेगा, इसको मैं फर्स्ट टाइम 10 रखता हूँ, ठीक है।
बट यहाँ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये 5 है। अगर यूजर पास नहीं करता तो 5 तो होगा ही होगा, बट अगर यूजर चाहता है कि 10 कर दो, 20 कर दो, जैसे अभी मैं यूजर हूँ, मैं 10 चाहता हूँ, तो इस 5 को ओवरराइड कर देगा। ओके। और कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ सेंटेंस, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट होगा जहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ। लेट मी ज़ूम इन अ बिट लाइक दिस। कॉन्टेक्स्ट में लेट्स से मशीन लर्निंग इज अ ग्रोइंग फील्ड इन AI। ये मैंने एक सेंटेंस लिया, दिस इज माई कॉन्टेक्स्ट। नाउ आई एम गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन, या आप इस फंक्शन को गेट रिस्पॉन्स नाम भी दे सकते हो, रिस्पॉन्स लाइक दिस। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, सो गेट रिस्पॉन्स, और इसको मैं पास करूंगा यूजर का इनपुट विच इज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और नंबर ऑफ बीम्स में पास करूंगा, number of, this is memes actually, this should be beams, right? So beams, and I will also pass number of, by the way first यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ रिटर्न सीक्वेंसेस है, तो मैं इसी को कॉपी कर सकता हूँ, या मैं इसको भी कॉपी कर सकता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। वेरिएबल्स, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स के नेम सेम होने चाहिए, ठीक है। फंक्शन को कॉल करते वक्त आप जो भी पास करते हो उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, और फंक्शन के ऊपर जो हम यूज करते हैं वैल्यू को गेट करने के लिए उसे हम कहते हैं पैरामीटर्स। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीजें भी आप लोग सीख सकता हूँ। मैं यहाँ पे भी वेरिएबल के नाम सेम रखना चाहता हूँ। नाउ इन दिस फंक्शन वी विल बी यूजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टोकनाइज दिस इनपुट टेक्स्ट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगेन मैं क्या करूंगा, सेम इसी कोड को यूज करूंगा, कॉपी था, सेम इसी कोड को मैं यूज करूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, कंट्रोल सी, बाय द वे आई नीड बोथ, then we can change accordingly if you want, or let me copy all, control C, and in the function I'll test, let me remove this thing, I don't need it, और मैं इसको जल्दी सेट करता हूँ like this। ये क्लैप का थोड़ा इशू चल रहा होता है। ओके, सो अब यहाँ पे होगा अपना यूजर का इनपुट टेक्स्ट, ठीक है, ये अपने यूजर का इनपुट टेक्स्ट हो गया, और ये आउटपुट के बजाय मैं इसको कहता हूँ ट्रांसलेटेड। बाकी चीज़ें आई थिंक सेम होनी चाहिए, बट हाँ इसको कॉपी कर दो और यहाँ पे 5 की जगह पे रिप्लेस कर दो, क्योंकि अब ये यूजर जो पास करेगा वही होगा, और यहाँ पे भी हम इसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया अपना फंक्शन। आई थिंक नाउ वी हैव टू डिकोड इट। सो डिकोड के लिए आप यहाँ पे एक, ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको डिकोड करते हैं सेम लाइक जो हमने टोकनाइजर से किया था। सो टोकनाइजर डॉट डिकोड, सॉरी बैच डिकोड, बैच डिकोड के अंदर आप क्या करते हो, ये जो अपना टेक्स्ट है ट्रांसलेटेड मॉडल ने जो दिया है आउटपुट, ये पास करते हो, एंड अगेन स्किप स्पेशल टोकन्स विल बी ट्रू। ठीक है, जब आप स्किप स्पेशल टोकन्स ट्रू रखते हो तो इसका मतलब है वी आर गोइंग टू स्किप CLS एंड प्री, ठीक है। उसके बाद we have to just return, finally we have to store this into an output like we can say that target text or generated text, कुछ भी नाम दे सकते हो। so ये फंक्शन हमें ये target text रिटर्न करेगा। so let me run this function and let me run this cell and we will see what is going on। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो लेने दें। So the field of machine learning is growing. There is a growing field of machine learning.
Machine learning is growing. Machine learning and artificial intelligence are growing together. The machine learning field is growing. So overall यहाँ पे इस ओरिजिनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर एंड वर्ड्स कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो सकता है, बट आइडिया एंड मीनिंग सेम है. दिस इज नोन एज पैराफ्रेज माइनिंग. सो दिस मॉडल इज वर्किंग क्वाइट गुड. सो क्विक रिवीजन, लेट्स क्विक रिवीजन दैट वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग इन PyCharm. सो मैंने यहाँ पे सेंटेंस स्प्लिटर, ट्रांसफार्मर एंड सेंटेंस पीस इन लाइब्रेरी आप इंस्टॉल किए हैं यूजिंग गूगल कोलैब. उसके बाद मैंने ट्रांसफार्मर से Pegasus for condition generation class and Pegasus tokenizer import किए. Then I downloaded both this model and tokenizer from Hugging Face, okay, website using transformer library. Then I tested this model, okay, using this code. This is my input. उसके बाद टोकनाइज किया मैंने इस इनपुट को using padding, truncation, all these parameters, and finally with the help of model.generate I generated output. I have to decode that, so use tokenizer.batch decode, इसको output दिया, and I don't want special keywords, तो मैंने रिमूव कर दिए. और उसके बाद चूंकि मैंने इसको सेव करना था, आगे मैंने यूज करना है, तो मॉडल और टोकनाइजर को विद द हेल्प ऑफ सेफ प्री ट्रेंड फंक्शन मैंने सेव किए ऑन दिस लोकेशन. लोकेशन मस्ट बी योर ड्राइव, ओके. मैंने बताया था कि आप किस तरह करता हूँ. मैंने रिलोड किए क्योंकि मैंने इसको यूज करना है. ये फंक्शन मैंने बनाया जो एक इनपुट लेगा यूजर का. यूजर कितने सेंटेंसेस चाहते हैं और नंबर ऑफ बीम्स कितने चाहते हैं. बाय डिफॉल्ट 5 है, लेकिन ये ओवरराइड भी हो सकते हैं. सो मैंने टोकनाइज किया, मॉडल से जनरेट किया, एंड फाइनली डिकोड करके मैंने वो सेंटेंसेस रिटर्न किए. ये मैंने कॉल किया तो ये मुझे आउटपुट मिला. So yeah, now let's jump into PyCharm and let's implement the interface for this app and all these things. But before going there, we need to download the save files. So open new tab, और न्यू tab ओपन करने के बाद आपने जाना है अपने ड्राइव में. नेट थोड़ा सा स्लो है, सो वी विल सी दैट. तो आपने जाना है यहाँ पे ड्राइव पे क्लिक कर दो, तो आपका ड्राइव यहाँ पे बस ओपन ही होने वाला है. ठीक है, मैंने क्लिक किया ही नहीं. आई थिंक मैंने क्लिक किया बट नेट इज स्लो. सो देखते हैं. जब आपका ड्राइव ओपन हो जाए तो आपने आना है माई ड्राइव के अंदर. माई ड्राइव के अंदर यू कैन सी यहाँ पे मॉडल है एंड टोकनाइजर है. आपने इन दोनों को यहाँ पे डाउनलोड करना है. सो फर्स्ट यू नीड टू डाउनलोड टोकनाइजर. तो टोकनाइजर पे हावर कर दे और यहाँ पे ये जो बटन है इस पे क्लिक कर दे, या इस 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, अभी के लिए अगर मैं टोकनाइजर के अंदर जाओ, तो टोकनाइजर के अंदर 3 फाइल है, ये तीनों आपने डाउनलोड करने हैं. आप सेपरेटली भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो ये 3 फाइल, अगर आप चाहो डायरेक्टली यहाँ से इसका जिप फाइल भी कर सकते हो जो मैंने बता दिया. द सेम थिंग गोज विद मॉडल. आपने मॉडल को भी डाउनलोड करने हैं, इसके अंदर जो 3 फाइल है वो भी आपने डाउनलोड करने हैं. ठीक है, सो डाउनलोड बहुत सिंपल है. जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन और जस्ट दिस 3 डॉट्स. ओके, ये मॉडल बहुत बड़ा है, यू कैन सी यहाँ पे. जस्ट लेट मी शो यू. ये अभी दिखा नहीं रहा है, एज यू कैन सी हियर ये 2 GB का होगा तकरीबन. सो आपने ये डाउनलोड करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट पार्ट. लेकिन वहां पे जाने से पहले अगेन काइंडली इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो. काइंडली का वर्ड मैं यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने जो पिछले वीडियो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है. वहां पे मैंने टोकनाइजेशन हर चीज बताई हुई है. और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना. मैं PyCharm ओपन करता हूँ और इम्प्लीमेंट. लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फोल्डर सेटअप. मैंने एक फोल्डर बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो पैराफ्रेज माइनिंग. इस फोल्डर को मैंने जब ओपन किया तो इसके अंदर एक फोल्डर मैंने बनाया मॉडल, जिसके अंदर वो जो 3 फाइल मैंने सेव किए थे मॉडल के, वो तीनों के तीनों डाल दिए. एंड उसके बाद मैंने टोकनाइजर बनाया, उसके अंदर जो भी टोकनाइजर के 3 फाइल थे वो भी मैंने पेस्ट किए. एंड यहाँ पे टेम्पलेट्स को अभी के लिए इग्नोर कर दो. तो जैसे मैं ये फोल्डर PyCharm में ओपन करूंगा, यहाँ पे इस टेम्पलेट्स के अंदर जो भी कोड है इसको हम रिमूव करते हैं. ठीक है, और अभी के लिए पैराफ्रेज माइनिंग गूगल पेगासस फोल्डर के अंदर मेरे पास मॉडल है, और उसके बाद टेम्पलेट के अंदर एक इंडेक्स है जो एम्प्टी है. ठीक है, और टोकनाइजर के अंदर वो 3 फाइल है. सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐप बनाता हूँ. यहाँ पे मैं जाके एक ऐप बनाऊंगा पाइथन फाइल, और इसको मैं जूम इन करता हूँ. अब आपने जाना है अपने टर्मिनल में. ठीक है, टर्मिनल में जाने के बाद, बट बिफोर दैट यू मस्ट क्रिएट इन्वायरमेंट. ओके, टर्मिनल के अंदर आपने इंस्टॉल करना है फ्लास्क. जस्ट लेट मी जूम आउट अ बिट.
like this. So why it's not working? मैं दोबारा इसको ओपन करके देखता हूँ। या सो पिप इंस्टॉल फ्लास्क, ये आपने इंस्टॉल करना है। जिस आप एंटर करोगे इंस्टॉल हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। उसके बाद यहाँ पे चूंकि आप अपना एनवायरनमेंट यूज कर रहे हो तो आपने अगेन टॉर्च को भी यूज करना है, क्योंकि इंटरनली जो सेव फाइल्स है वो टॉर्च को यूज करता है। तो आपने लिखना है टॉर्च, यहाँ पे अपने पिप इंस्टॉल टॉर्च करना है। एंड डेफिनेटली वो जो 3 लाइब्रेरीज हमने स्टार्ट में इंस्टॉल किए थे, सेंटेंस स्प्लिटर, सेंटेंस पीस एंड ट्रांसफार्मर, वो भी आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स ये भी आपने इंस्टॉल करने हैं। सो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आपने ये सारे के सारे यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फ्लास्क से इंपोर्ट करता हूँ कैपिटल एफ वाला फ्लास्क जो ऐप बनाने में हेल्प करेगा, रेंडर टेम्पलेट जो हमें HTML फाइल के साथ रिडायरेक्ट करने में हेल्प करेगा, और फॉर्म को रिक्वेस्ट मानने के लिए रिक्वेस्ट फंक्शन। उस अभी के लिए मैं जस्ट इनको इंपोर्ट करता हूँ। उसके बाद मैं ऐप क्रिएट करता हूँ। सो फ्लास्क में ऐप क्रिएट करने के लिए आप एक वेरिएबल बनाते हो ऐप के नाम से। सो जो हमने क्लास इंपोर्ट किया है उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट देते हो लाइक नेम। ये ऐप का फ्लास्क का ऐप हो गया, ठीक है। उसके बाद हम रूट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप डॉट सॉरी रूट ऐप डॉट, आप यहाँ पे रूट देते हो लाइक दिस। और इसके अंदर आप वो पाथ देते हो जहाँ पे आपने जाना है। जो मैंने यहाँ पे URL दिया, एक फंक्शन बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ इंडेक्स, और ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा रिटर्न रेंडर टेम्पलेट index.html में, ठीक है। ये है मेरा टेम्पलेट के अंदर index.html जो एम्प्टी है। मैं क्या करता हूँ, जो स्टार्टअप टेम्पलेट है, बेसिक टेम्पलेट है, वो जल्दी जल्दी यहाँ पे कॉपी करके आप लोगों को बताता हूँ। तो ये बहुत ही बेसिक सा टेम्पलेट है HTML का। यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप से कॉपी किया है, पिछले मशीन लर्निंग वाले प्लेलिस्ट में मैंने डिटेल से बताया है, बट स्टिल ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं एक टाइटल देना चाहूंगा, ठीक है। H1 के नाम से मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का क्लास यूज करता हूँ लाइक दिस, और वो है टेक्स्ट सेंटर। ये मैं यहाँ पे क्लास यूज करने वाला हूँ, और आप कोई भी नाम दे सकते हो जैसे कि पैरा फ्रेज जनरेटर ऐप। सो अब मैं इस इंडेक्स को यहाँ से रन करता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पाइथन की मैन चाहिए। तो इस फंक्शन से बाहर आके यहाँ पे मैं पाइथन मैन बनाता हूँ। सो पाइथन मैन आप किस तरह बनाते हो, बहुत ही सिंपल है, आप सबको पता है। नेम विल बी इक्वल टू अंडरस्कोर मैन, ये आप सबको पता है। अब इसके अंदर मैं ऐप को रन करता हूँ जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, और डिबगर को ट्रू रखूंगा ताकि ये रिलोड होता रहे। अब यहाँ पे मैं जस्ट राइट क्लिक करता हूँ और इस ऐप को रन करता हूँ। आप यहाँ से भी इसको रन कर सकते हो। तो ये URL आपको मिल जाएगा, आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे एक एरर है, द व्यू फंक्शन फॉर इंडेक्स डिड नॉट रिटर्न अ वैलिड रिस्पांस, द फंक्शन आइदर रिटर्न नॉन और एंडेड विदाउट अ रिटर्न स्टेटमेंट। आई थिंक देयर इज सम कुछ चीज यहाँ पे मैंने मिस की है, बट लेट मी शो यू कि मैंने क्या चीजें मिस की हुई है। टेम्पलेट्स के अंदर इंडेक्स है और मैंने भी index.html दिया है, और यहाँ पे मुझे रिटर्न भी लिखना चाहिए, ये मेरी गलती थी। तो मैं वहाँ पे जाके उसको रिलोड करता हूँ, ये अपना पैराफ्रेज जनरेटर ऐप आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि बॉडी का कलर ब्लैक हो, तो मुझे जाना होगा यहाँ पे और इसको हल्का सा जूम इन करना होगा। अब यहाँ पे मैं स्टाइल ऑलरेडी मैंने ऐड किया है, बट मैं बॉडी से ऊपर हेड से नीचे CSS ऐड करूंगा। मैं कहता हूं कि बॉडी को कॉल करो और बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है उसको ब्लैक करो, और उसके ऊपर अगर कोई टेक्स्ट कोई लिखता है यानी कलर, उसको आप वाइट कर दो, ठीक है। ये बॉडी को मैंने क्लोज किया। अब अगर मैं जाओ देन आवर बॉडी मस्ट बी ब्लैक, ये अपना बॉडी ब्लैक हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैं इस पैराफ्रेज को नीचे की तरफ थोड़ा खिसकाओ, सो ये भी हम कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इस टेक्स्ट के अंदर एक और क्लास ऐड कर सकते हो, मार्जिन टॉप विल बी लाइक 5 और 4, ये बूटस्ट्रैप का क्लास था। अब अगर मैं इसको रिलोड करूं तो ये नीचे की तरफ थोड़ा सा खिसकेगा। अब इसके नीचे मैं कंटेनर डालूंगा जिसमें मैं अपना इंटरफेस बनाऊंगा।
सो उसके लिए आपको अगेन बूटस्ट्रैप के बहुत ही अच्छे क्लासेस है, वो आप यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे आके मैं div डॉट कंटेनर के नाम से एक क्लास डालता हूँ, और एक और क्लास इसमें डालता हूँ अगेन मार्जिन टॉप। मैं इस बार 5 रखूंगा, यानी मैं इसको भी थोड़ा नीचे खिसकाना चाहता हूँ। अब इस div के अंदर हम सारा का सारा कोड करेंगे विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हेडिंग था। अब इस कंटेनर के अंदर हम अपना मेन पार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं एक क्लास डालूंगा अगेन टेक्स्ट सेंटर शुड बी सेंटर, और यहाँ पे भी मैं एक नया क्लास है MB, यानी ऊपर की तरफ से अगेन मैंने इसको भी खिसकाना है, वो 4 डालूंगा। तो इसमें भी कुछ टाइटल हम दे सकते हैं लाइक यूजिंग गूगल, मैंने आपको दिखाया था पेगासस, पेगास लाइक दिस, गूगल पेगासस ट्रांसफॉर्मर, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेना। अब इसके नीचे हम फॉर्म बनाएंगे जहाँ पे हम यूजर से इनपुट लेंगे। सो फॉर्म के अंदर आप एक्शन देते हो। अब ये एक्शन क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगा, लेकिन मैं इसको एक नाम देता हूँ पैराफ्रेज, और मेथड में रखना चाहता हूँ पोस्ट, ठीक है। अब इस फॉर्म को अभी के लिए मैं एम्प्टी रखता हूँ। जस्ट फर्स्ट लेट मी शो यू कि ये किस तरह दिखाई देता है। सो लेट मी रिलोड, ये अपना आ गया। अब इस कंटेनर में कुछ स्टाइलिंग करने से पहले मैं इस फॉर्म के अंदर कुछ इनपुट डालूंगा। सो फॉर्म के अंदर एक div यूज करूंगा और इसको मैं क्लास देता हूँ फॉर्म ग्रुप। अगेन आई एम यूजिंग ऑल बूटस्ट्रैप क्लासेस, ठीक है। और इसके अंदर एक लेबल डालूंगा और इसको मैं टेक्स्ट रखता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ एंटर टेक्स्ट। यहाँ पे मैं शिफ्ट दबा के एंटर करता हूँ ताकि न्यू सेल पे आ जाओ, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया डालूंगा, ठीक है, टेक्स्ट एरिया। और इस टेक्स्ट एरिया के लिए के अंदर भी डेफिनेटली मैं फॉर्म का क्लास यूज करूंगा जिसको हम कहते हैं फॉर्म कंट्रोल, ये अगेन बूटस्ट्रैप का है। और इसके अंदर भी आपने आईडी देना है, आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हो, और आपने नाम देना है जो बैकएंड में आप एक्सेस करोगे। इस टेक्स्ट के अंदर यूजर जो भी डालेगा वो हम इस नाम की मदद से बैकएंड में एक्सेस करेंगे ऐप में, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आप इसकी विड्थ हाइट को भी सेट कर सकते हो बाय यूजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो चलिए उसको भी देखते हैं। सो रोज को मैं रखता हूँ 4 रोज काफी होंगे। कॉलम्स अगर आप चाहो तो 50 रख सकता हूँ ताकि इसकी विड्थ बढ़ जाए। और इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरह क्लोज करता हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो जस्ट रिलोड द पेज, अपना ये आ गया। अब मैं इसकी विड्थ को बिल्कुल इसके बराबर रखना चाहता हूँ ताकि ये मोबाइल की तरह दिखे, जो मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया था। तो सारा डिपेंड करता है इस इंटायर कंटेनर पे। तो मैं इस कंटेनर के अंदर इनलाइन CSS का यूज करूंगा, तो क्यों ना हम यहाँ पे एक स्टाइल ऐड करें और इस स्टाइल में अपनी तरफ से कुछ चीजें डालें लाइक दिस। सो पैडिंग में रखना चाहूंगा 50 पिक्सल, विड्थ में रखना चाहूंगा 50% ताकि ये हाफ हो जाए और जिस तरह मैं चाहता हूँ उस तरह दिखाई दे। और मैं इसमें बॉर्डर डालना चाहता हूँ 5 पिक्सल विद रेड कलर एंड डैश टाइप, ये मेरे बॉर्डर हो जाएंगे। और बॉर्डर रेडियस भी डालना चाहूंगा। सो बॉर्डर रेडियस, अगेन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस यूजर इंटरफेस। अगर आपको ये नहीं आता आप जस्ट फॉलो करें। और मैं यहाँ पे रेडियस डालूंगा और रेडियस में अभी के लिए 15 पिक्सल डालूंगा। मैं इसको रिलोड करता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। ये अपना ऐप आई थिंक कुछ हद तक ठीक है, या अगर हम चाहें तो हम इसकी विड्थ को फर्दर वो रिड्यूस कर सकते हैं इफ यू वांट, बट या अभी के लिए ठीक है। नाउ इन दिस फॉर्म मैं इसके इस div के नीचे इस div के नीचे मैं नंबर ऑफ सीक्वेंसेस के लिए एक div डालूंगा। सो div, इसको मैं फॉर्म ग्रुप कहता हूँ,
और इसमें अगेन मैं एक लेबल डालूंगा और आप इसको नंबर ऑफ फ्रेज भी कह सकते हो या सीक्वेंसेस भी कह सकते हो. You might be thinking what is going on. You will understand all these things, okay, a bit later. Select number of paraphrases. क्योंकि आउटपुट में यूजर क्या चाहता है, कितने पैराफ्रेज चाहते हैं. वो 100 भी चाहते हैं, वो 15 भी चाहते हैं, वो 10, 5 वी डोंट नो. तो हमें ये फैसिलिटी यूजर को देनी चाहिए. पैराफ्रेज, ओके. और इसके लिए डेफिनेटली मैं ड्रॉप डाउन का यूज करूंगा, तो वो आपके पास सेलेक्ट होता है. अगेन मुझे यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल क्लास का यूज करना होगा. आईडी आप कोई भी दे सकते हो, बट हाँ मैं इसको नंबर ऑफ पैरा इसी को ही यूज करूंगा. सेम इसी को यूज करूंगा, ठीक है. कंट्रोल सी, कंट्रोल वी. और बैकएंड में हमने ये एक्सेस भी करना है, तो नाम भी हम यूज करेंगे. सो अगेन अब इस सेलेक्ट के अंदर, विद इन दिस सेलेक्ट मैं ऑप्शन यूज करूंगा. सो ऑप्शन यहाँ पे आप वैल्यू देते हो. पहले 5 बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, 5. यहाँ पे मैं कंट्रोल डी करता हूँ. उसके बाद 10, क्योंकि यूजर 10 भी चाह सकता है. उसके बाद 15, आई थिंक 12 से 12 भी ऐड करते हैं. मैं भी यूजर वांट 12, कंट्रोल डी एंड 15 तक कर लेते हैं, ठीक है. इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते. सो लेट मी चेक. सो ये यहाँ पे ऐड हो गया, बट अगर देखा जाए तो इसकी स्टाइल कुछ खास अच्छी नहीं है, ठीक है. बट स्टिल इट्स ओके. लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ क्लासेस ऐड करूँ, देन वी कैन इम्प्रूव इट. आई थिंक फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे मैंने यूज किया है. Yeah, it's perfect. We can go with it. Now, before this form, I want to add button. So उसके लिए आप बटन यूज करते हो और बटन के अंदर आप टाइप रखते हो सबमिट. और इस बटन के अंदर आप क्लास ऐड करते हो btn. मैं रेड कलर का चाहता हूं, तो वही क्लास देते हैं btn डेंजर, ठीक है. और मैं इसकी फुल विड्थ चाहता हूं, तो मैं स्टाइल ऐड करूंगा इसमें विद 100% विड्थ, यानी ये कंटेनर का फुल विड्थ लें ताकि खूबसूरत दिखाई दे. और इसको आप नाम दे सकते हो जैसे कि पैराफ्रेज. लेट्स सी व्हाट हैपन. लेट मी रीलोड. ये अपना बटन भी आ गया, ठीक है. अगर आप चाहो तो आप इसको ब्लू रख सकते हो, जैसे कि डेंजर के बजाय प्राइमरी अगर हम इसको रखें, देन इट विल बी ब्लू कलर, ठीक है. अब ये ठीक है, ओके. नाउ ये तो अपना फॉर्म था. फॉर्म तो बिल्कुल तैयार है, ठीक है. ये अपना फॉर्म हो गया. अब बैकएंड में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि जब टेक्स्ट एरिया में यूजर कुछ रेफरेंस डालेगा, तो विद द हेल्प ऑफ दिस नेम, दिस टेक्स्ट, वहां पे हम इसको गेट करेंगे. और जो जितने सेंटेंसेस चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर ऑफ पैराफ्रेज नेम, वो हम बैकएंड में गेट करेंगे. फिर हम अपना मॉडल सारा प्री प्रोसेसिंग यहाँ पे करेंगे. सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्रॉम ट्रांसफार्मर इंपोर्ट, हमने इंपोर्ट करना है यहाँ पे जो भी वहां पे हमने यूज किया था. जस्ट लेट आई थिंक पेगासस, ठीक है. सो ये मुझे पेगासस फॉर कंडीशन जनरेशन, और इसकी मुझे टोकनाइजर भी चाहिए. सो पेगासस टोकनाइजर, ठीक है. ये करने के बाद अब जो सेव फाइल है, इनको मैं रिलोड करता हूँ. लोड सेव मॉडल एंड टोकनाइजर, क्योंकि अभी मैंने इनको यूज करना है यूजर के इनपुट पे जो फ्रंट एंड से आएगा. अब डेफिनेटली अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये जो मॉडल्स हैं इसको मैं लोड करूंगा, और ये जो टोकनाइजर है इसको मैं यहाँ पे लोड करूंगा. बहुत सिंपल है. आप क्या करते हो, मॉडल विल बी इक्वल टू Pegasus, just Pegasus for condition generator dot from pre-train. It's not recommending me from pre-train. Why? From pre-trained. और उसके अंदर आप अब अपना फोल्डर जस्ट दोगे. ये जो फोल्डर है मॉडल, ये जस्ट दोगे. इसी को मैं रिप्लिकेट करता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ टोकनाइजर रिप्लिकेट जस्ट बाय कंट्रोल डी, ओके.
और इसको भी मैं कहता हूँ टोकनाइजर। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ये जो टोकनाइजर है, सॉरी दिस वन, टोकनाइजर एंड मॉडल, ये मैंने यहाँ पे लोड कर लिए। ठीक है, अब मैं इनको यूज कर सकता हूँ। अब अगर मैं index.html में जाऊं तो हमारे पास एक फॉर्म है पैराफ्रेज। इसके लिए मैं एक यूआरएल बनाऊंगा, यूआरएल इन द सेंस कि मैं इसके लिए एक रूट बनाऊंगा, यही मेरा मेन रूट है। सो app.root, जब कोई पैराफ्रेज वाले फॉर्म के सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेगा तो आपने इस वाले रूट पे आना है, और यहाँ पे ये आपसे यूज करता है methods। keep in mind it must be methods, spelling must be methods। लिस्ट के अंदर मैं पास करता हूं आइदर गेट और पोस्ट, बट फॉर्म में हमने मेथड पोस्ट दिया है, तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे और इसको हम कहते हैं पैरा, आई थिंक द सेम इट कुड बी सेम, फंक्शन डजंट मैटर, यू कैन चेंज द नेम। ओके, अब यहाँ पे मैं एक चेक लगाऊंगा इफ रिक्वेस्ट, जो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट इंपोर्ट किया है, अब जो मैं फॉर्म को रिक्वेस्ट मारूंगा, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, इसके अंदर एक फंक्शन होता है मेथड, अगर ये इक्वल टू पोस्ट है, यानी वहां से पोस्ट है, देन ओनली गो आगे। अब मैं फॉर्म को रिक्वेस्ट मारूंगा, और फॉर्म को मैं रिक्वेस्ट कैसे मारूंगा, उसके अंदर होता है अपना नाम टेस्ट। ठीक है, आई मीन अगर यूजर इनपुट करता है टेस्ट, आई एम गोइंग टू गेट दिस थिंग। ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ इनपुट टेक्स्ट, और साथ ही साथ मैं इसी को रिप्लिकेट करता हूँ। ओके, और उसके बाद हमारे पास सेकंड जो था वो था नंबर ऑफ पैराफ्रेजेस, कंट्रोल सी। ये दो चीजें मुझे फॉर्म से लेने, यूजर जो एंटर करेगा। अब मैं जो है ना, जो फंक्शन मैंने बनाया है वो पहले कोलैब नोटबुक में, उसी को एज इट इज रेप्लिकेट करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके राइट हियर उस फंक्शन को पेस्ट करता हूँ। ये है वो फंक्शन जो हमने वहाँ पे बनाया था, गेट रिस्पॉन्स, जिसके पास एक इनपुट टेक्स्ट आता था, सीक्वेंसेस आते थे, बट यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट इनको 5 रखता हूँ, इसको मैं 10 रखता हूँ, बाकी चीजें सेम है। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, सो और इसको मैं क्या नाम था, गेट रिस्पॉन्स, जिसको आएगा यूजर का इनपुट टेक्स्ट और नंबर ऑफ पैराफ्रेजेस और नंबर ऑफ बीम्स को मैं 10 ही करता हूँ, पूरी 10 यहाँ पे भी 10 करता हूँ। सो दिस टू थिंग्स, इनपुट टेक्स्ट एंड नंबर ऑफ पैराफ्रेजेस, यूजर यहाँ पे डाल रहा है, जो कि फ्रंट एंड से हम गेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने एक काम किया है, ये चूंकि स्ट्रिंग है, ये आपको एक एरर देगा, नंबर ऑफ पैराफ्रेजेस इज अ स्ट्रिंग, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंट। तो ये हम बाद में करेंगे, बट अगर हमें आउटपुट मिलेगा तो फाइनली इट कुड बी लाइक, इसको कोई भी नाम दे सकते हो, ट्रांसलेटेड, और वी कैन से पैराफ्रेजेस। ठीक है, अब ये जो पैराफ्रेजेस है और इनपुट टेक्स्ट है, ये मैं भेजूंगा index.html को विद हेल्प ऑफ रिटर्न टेम्पलेट, और यहाँ पे आप क्या करते हो, मैं कहता हूँ कि इनपुट टेक्स्ट विल बी इक्वल टू इनपुट टेक्स्ट, मैं बताऊंगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे कॉमा डालना चाहिए, एंड पैराफ्रेजेस विल बी इक्वल टू पैराफ्रेजेस। सो फ्रंट एंड पे मैंने ये दो चीजें दिखानी है यूजर को, इनपुट टेक्स्ट जो उसने सेंटेंस डाला है, और उसके लिए जनरेटेड पैराफ्रेजेस जो कि ये हैं। अब जब यूजर से हम ये दो चीजें लेंगे, इनपुट टेक्स्ट एंड नंबर ऑफ पैराफ्रेजेस, तो ये हम पास करें अपने इस फंक्शन को। ठीक है, इस फंक्शन को, एग्जैक्टली दिस फंक्शन को, और ये हमें पलट के जनरेट करके दे रहा है दिस जनरेटेड पैराफ्रेजेस। और इससे बाहर भी मुझे वापस जाना होगा रेंडर टेम्पलेट में, index.html। ठीक है, सो हमारा कोड रेडी है। अब
होप आप लोगों को आइडिया लग गया कि ये किस तरह काम कर रहा है और किस तरह काम करेगा। सो अब मैंने जाना है index.html में और फॉर्म से बाहर, बिल्कुल फॉर्म से नीचे मैं ये सारा का सारा आउटपुट दिखाना चाहता हूँ। सो लेट्स डू दैट एज वेल। अब देखना, अगर आपने पाइथन का कोड HTML के अंदर करना है यूजिंग फ्लास्क, तो आपने यहाँ पे जिंजा टेम्पलेट का यूज करना होगा। सो अगर मैं ऐप में जाऊँ, आई एम गेटिंग दिस टू थिंग्स, इनपुट टेक्स्ट जो यूजर ने डाला है और मॉडल के जरिए जनरेटेड पैराफ्रेजेस। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जिंजा टेम्पलेट का इस्तेमाल करूंगा कुछ इस तरह। अगर मैं इनपुट टेक्स्ट यहाँ पे डालूं लाइक दिस, सो इफ आई गो टू, अभी के लिए जस्ट आई गो टू reload the page, so maybe we get an error. Okay, I think we lost the URL, so let me run it again. Let me run it again. तो यहाँ पे एरर है, does not appear to have a file name config.json. I think tokenizer does not appear to have a file name. Line 10 पे we are getting an error. ये यहाँ पे जो टोकनाइजर है इसका कुछ इशू चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे गलती मैंने ये की है कि बहुत छोटी सी गलती है, मैं पहले इसको सेट करता हूँ। एक तो इसने काफ़ी मुझे थकाया हुआ है, मुझे एक्चुअली ये वाला यूज़ करना होगा टोकनाइजर के लिए। ठीक है, सो आई थिंक यही था। लेट मी रन इट अगेन। सो मैं क्लिक करने वाला हूँ, ये वाले को क्लोज करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगा लोडिंग में। सो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस डालने वाला हूँ, देखते हैं होता है क्या। वी लीव ऑन अर्थ, और मैं अभी के लिए 5 ही चाहता हूँ। ठीक है, पैराफ्रेज पे क्लिक करता हूँ। यू वुड सी दैट गेट रिक्वेस्ट की एरर, ये तो कुछ और एरर है, और ये एरर बहुत ही, आई थिंक मैंने अगेन मिस्टेक किया है। कहाँ पे, ये अपना टेक्स्ट हो गया, ये अपना नंबर ऑफ पैराफ्रेजेस हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे ये टेक्स्ट हो गया, ये नंबर ऑफ पैराफ्रेजेस हो गया। तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ पैराफ्रेजेस स्ट्रिंग में है, तो हमने जब यहाँ पे पास किया है फंक्शन को, अगर ऊपर जाए तो हमने यहाँ पे इनको इंट में कन्वर्ट करना होगा, अदरवाइज ये हमें इसी तरह के एरर देते रहेंगे। सो मैं एक बार इसको कट करता हूँ, लेकिन इसकी इंडेंटेशन का भी इशू है लाइक दिस। और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इस नंबर ऑफ रिटर्न सीक्वेंसेस को इंट में कन्वर्ट करता हूँ। सो अब अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, मैंने क्या किया, जो ये नंबर ऑफ रिटर्न सीक्वेंसेस है इनको जस्ट इंट के अंदर पास किया, इंट के अंदर, और पलट के मैंने अगेन सेम वेरिएबल में स्टोर किया। अब ये इशू हमें नहीं देगा। सो ये तो हो गया। उसके बाद मैं एक बार फॉर्म वाला जो एक्शन है उसको भी चेक करना चाहूँगा। द एक्शन इज पैराफ्रेज विच इज ओके। यहाँ पे मैं इसको भी ठीक करता हूँ। So, बाकी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। टेक्स्ट एंड नंबर ऑफ पैराफ्रेजेस भी यहाँ पे हमने गेट किए हैं। अब देखते हैं, अगर मैं वापस जाऊँ और एक बार फिर से पैराफ्रेज पे क्लिक करूँ तो इस बार डेफिनेटली ये काम करेगा। अगेन लोडिंग में थोड़ा सा, ओके, अगेन वी हैव द सेम एरर, नंबर ऑफ पैराफ्रेजेस, दिस थिंग नॉट दिस थिंग। एक्चुअली मैंने request.form number of paraphrases, सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ
नंबर ऑफ पैराफ्रेजेस, सो ठीक तो है। नंबर ऑफ पैराफ्रेजेस मैं सबको सेम रखना चाहूँगा। मे बी द इशू इज जस्ट बिकॉज ऑफ, अब मैं यहाँ पे आके इसको भी देखता हूँ। आई थिंक ठीक तो है। देन वर्ड्स, ओके दैट, नो दिस थिंग इज आल्सो, अच्छा यहाँ पे ये डिफॉल्ट पैरामीटर हमने यूज किया था। अगेन आई डिड अ मिस्टेक। सो यहाँ पे ये डिफॉल्ट पैरामीटर है, सो मुझे एक्चुअली ये पहले यूज करना होगा। ये मैंने मिस्टेक की है, लाइक दिस। ठीक है, सो इट्स हैपन या, क्योंकि इनपुट टेक्स्ट, अच्छा इनपुट टेक्स्ट भी हमने ये करना होगा एग्जैक्टली। इनपुट टेक्स्ट यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर है, सो अगेन आई हैव टू डू इनपुट टेक्स्ट विल बी इक्वल टू इनपुट टेक्स्ट। सो ये छोटी सी गलती हमने की हुई थी। ओके परफेक्ट। नंबर ऑफ रिटर्न सीक्वेंसेस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पैराफ्रेजेस जो कि यूजर के हैं, एंड इनपुट टेक्स्ट विल बी इक्वल टू इनपुट टेक्स्ट जो कि यूजर का है, एंड नंबर ऑफ बीम्स हमने यहाँ पे 10 सेट किए हैं जो कि ठीक है। अब ठीक है आई थिंक, चलिए ट्राई करके देखते हैं। मैं एक बार इसको अगेन देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा टाइम अगेन लेगा लोडिंग में। नंबर ऑफ पैराफ्रेजेस, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, नंबर ऑफ पैराफ्रेजेस। ओके, ये तो बहुत टीडियस होने वाला है, चले देखते हैं इसको। सो द एरर इज ऑन दिस लाइन। ओके, रिक्वेस्ट किया हमने फॉर्म को और वहाँ पे जो नाम है वो है नंबर ऑफ पैराफ्रेजेस। जस्ट लेट मी कॉपी दिस वन। अब अगर मैं इंडेक्स में जाऊँ, बट व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, इट्स आई थिंक ये मसला था, स्पेलिंग का कोई इशू मेरे ख्याल में था। मैं एक बार फिर से देखता हूँ, देखते हैं कि अगर मैं इसको रिलोड कर दूँ और वी लीव ऑन अर्थ, क्लिक ऑन द बटन, हाँ इस बार आई थिंक ये काम करेगा। ओके वी गेट द टेक्स्ट। ओके यू कैन क्लियरली सी वी लीव ऑन अर्थ, क्योंकि अभी तक हमने जस्ट यहाँ पे अगर आए तो हमने एक ही चीज़ प्रिंट किया है, लेकिन मैं एक चेक लगाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं दो चीज़ें गेट कर रहा हूँ, इनपुट टेक्स्ट एंड पैराफ्रेजेस। सो आई वांट टू पुट हियर अ चेक फॉर शोइंग द आउटपुट। यहाँ पे मैं जिंजर टेम्पलेट का यूज करूंगा। इफ पैराफ्रेजेस, अगर हमें पैराफ्रेजेस मिले हैं बैकएंड से, देन ओनली गो फॉरवर्ड। और यहाँ पे मैं एक H3 का यूज करके ओरिजिनल पैराफ्रेज और टेक्स्ट, टेक्स्ट कहते हैं, और इसी को मैं यहाँ से कट करता हूँ लाइक दिस, और यहाँ पे मैं अब एक पैराग्राफ डालूंगा और उसमें मैं ये चीज डालूंगा लाइक दिस। ठीक है, और मैं अब इसको भी कर देता हूँ जल्दी जल्दी। ये तो हो गया अपना इफ पैराफ्रेजेस वाला पार्ट। अब हमारे पास एक और चीज है, यानी हमने जस्ट इनपुट टेक्स्ट को डिस्प्ले किया, हमने एक्चुअल में ये चीज डिस्प्ले करना है। अब इसके अंदर 5 आउटपुट हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा और ये चीजें मैं एक लिस्ट में दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं div डॉट ग्रुप लिस्ट एक क्लास है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट वी विल सी दैट। इसके अंदर मैं सबसे पहले तो एक H3 के अंदर दिखाऊंगा जनरेटेड पैराफ्रेजेस, शिफ्ट टैब, और अब मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर आई इन दिस पैराफ्रेजेस जो बैकएंड से हमें आ रहे। अगर ऐसा है, आई थिंक दिस शुड बी
अनऑर्डर्ड लिस्ट इंस्टेड ऑफ ग्रुप। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिस्ट के अंदर दिखाऊंगा आई को, ठीक है। और इस फॉर को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, एंड फॉर, और इस इंटायर लिस्ट से बाहर आके मैं एंड करता हूँ इफ को, एंड इफ। ये आपने लाजमी करना है, ये जिंजर टेम्पलेट की कहानी। But I would like to use here some bootstrap classes. So again, if paraphrases, just let me copy this part. ये मैंने वैसे यहाँ पे देखना है कि सेम है, ठीक है। अगर पैराफ्रेजेस है तो आप पहले इनपुट टेक्स्ट दिखाओ, उसके बाद मैंने H2 के अंदर लिस्ट ग्रुप होना चाहिए क्लास, और लूप चलाया, पैराफ्रेजेस से 1 बाय 1 पैराफ्रेज निकाला और उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया एक लिस्ट के अंदर। और यहाँ पे देखना मैंने लिस्ट ग्रुप आइटम एक और क्लास दिया है। तो अब इसका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा। मैं क्या करता हूँ, इस वाले क्लास का थोड़ा सा CSS करता हूँ, फिर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे आके मैंने CSS यहाँ पे ऐड किया था आई थिंक। सो क्लास आप इस तरह एक्सेस करते हो। मैं बैकग्राउंड को वाइट रखना चाहूँगा एंड जो कलर हो उसको मैं ब्लैक रखना चाहूँगा, लाइक दिस। सो आई एम गोइंग टू शो यू, दिस इज द ऐप, लेट मी रिलोड इट। एंड इफ, सो जिंजर टेम्पलेट में हमने कुछ गड़बड़ की है। इफ पैराफ्रेजेस एंड इफ, ठीक ही तो है। ओके, यहाँ पे मैंने जब कॉपी किया था एक्चुअल में मैं यहाँ पे एक पैरेंथेसिस मिस कर गया था, ये होता रहता है। बाय द वे दिस इज द कोड। नाउ लेट मी रिलोड इट अगेन। सो वी हैव दिस थिंग। अब मैं यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ एक सेंटेंस डालना चाहता हूँ, जैसे कि sky has a blue color with black clouds, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि मैं जनरेट करूँ 10 पैराफ्रेजेस, और मैं अब पैराफ्रेज पे क्लिक करने वाला हूँ और ये थोड़ी देर बाद मुझे आउटपुट दिखाएगा। तो ये देखो, अब मैं इसको जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। ये हमने टाइप किया था यहाँ पे। सो ये हमारा जो हमने इनपुट टेक्स्ट में दिखाया था, जो हमने एक्चुअल में टाइप किया था। देयर इज अ ब्लू स्काई विद ब्लैक क्लाउड्स। तो इसने स्ट्रक्चर एंड वर्ड्स को चेंज किया, बट मीनिंग एंड आइडिया सेम है। द स्काई इज ब्लू विद ब्लैक क्लाउड्स, स्काई इज ब्लू विद ब्लैक क्लाउड्स, there are clouds with the blue color, the sky has a blue color, there is a blue color in the sky, there is a blue, perfect. Let me check one more, जैसे कि she loves to eat bread or something like this. मैं अभी के लिए 5 चाहता हूँ, let me click on this. Now focus on the loves and bread जो word है इस पे। she likes, loves को likes में किया, bread को सेम रखा। she loves to eat bread, she enjoys eating bread, she likes eating bread, she is fond of eating bread. So amazing, this model is working quite good. Now ये था अपना प्रोजेक्ट इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्लेलिस्ट का। आई होप आपने इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखा होगा। ये सारा का सारा कोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और एग्जैक्ट प्रोसेस फॉलो करो जो मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट में छोड़ सकते हो।